Okay, all right. So this is our chapter 2, microorganisms, friends and foe. So what is the meaning of foe? Sir, enemy. Not enemy, yes. So microorganisms are our friends as well as they are our enemies. So let us try to understand more about the microorganisms. So firstly, what are microorganisms? They are very, very small organisms which cannot be seen with our unaided eye. That means by simply with our eye we cannot see them. We require microscope to see the microorganisms. So microorganisms जो होते हैं they can be unicellular सकते हैं और they could be multicellular. बहुत डिफरेंट नंबर ऑफ सेल से दो 2 4 8 16 ऐसे सेल से बने हो सकते हैं. ठीक है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे एग्जिस्ट अलोन. मे बी वो अकेले हों या फिर इन कॉलोनीज. दैट मीन्स इन ग्रुप्स. So look at the pictures below. There are different type of microscopes shown in the pictures. Okay, and these pictures they are taken up only by the electron microscope. So although they are very very small, microorganisms are very small, but here they are visible because they are being magnified thousands of times. बड़ा करके दिखा रहे हैं. फाउंड कहाँ कहाँ मिलते हैं? कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, मार्शी लैंड्स, दलदली इलाके जो होते हैं, एंड दे आर इवन फाउंड इन आवर बॉडी. ठीक है. दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स. So look at the pictures below. They are very interesting and colorful pictures. Some microorganisms are rod shaped, some are round like a ball, okay, and some are in groups, some are alone. So, so they often cause problems for us. Some microorganisms are good, but some are also bad. Like, for example, coronavirus these days, it is also a microorganism. Now, let us see what are the different types of microorganisms. So, microorganisms को फोर ग्रुप में बांटा हुआ है. दे आर बेटा माइक ऑफ करिए अपना. So there are four main type of. They are bacteria, fungi, algae, and protozoa. Okay, Ritika, mic off करना अपना. Ritika, off your mic. Okay. So besides this, viruses are also considered as microorganisms. They are different from other microorganisms because they reproduce only in the body of host organisms. So जो virus होते हैं, like for example coronavirus, so they are not a cell, but they are only a piece of RNA covered by a protein coat. So that's why they require a host. किसी के अंदर वो उनको एंटर होना होता है, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. So that is why virus is a bit different than the other microorganisms because they require a host for reproduction. So what are the look at the examples and the pictures below of different type of microorganisms like algae, fungi, protozoans. Okay, so these are the different examples of microorganisms. Have you seen this bread mouse? Yes, sir. Sir, it is fungi. Okay, so आगे चलते हैं. So this is the diagram of a virus. Okay, so look at this. Let us try to understand it. That how does a virus looks like? So here is the head of the virus. Look at first figure, head, and this is the tail, and these are the end plates. अब हेड के अंदर क्या होता है?
इसके अंदर एक आरएनए होता है या डीएनए होता है, विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स। ओके, और बाहर ये जो इसका एक एनवलप है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं विच हेल्प इन द अटैचमेंट। ओके, तो नथिंग मच है। बस ये दो दो तीन चीजें होती हैं वायरस में। कौन सा वायरस है ये? दिस इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, एड्स का HIV। वायरस है। यस। और ओके, सो आगे चलते हैं। सो नाउ, एज आई टोल्ड यू, there are some microorganisms which are friendly and some microorganisms are our enemies. So first of all, let us see that which microorganisms are our friends. So firstly, there are some bacteria, microorganisms like bacteria decomposes organic waste into manure and increase the fertility of the soil. So अब जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते हैं, सपोज हमारा फूड है या पेपर है या सम पीसेस ऑफ क्लोथ्स हैं, थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि दे गेट डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं। और बाद में जैसे हम अपने स्कूल में देखा, हम कंपोस्ट बनाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे डाल देते हैं। आफ्टर 1 or 2 months, when we open up it again, we see that all the waste material is not there. वहां पर क्या है? एक ब्लैक कलर का मिट्टी जैसा है। सो दैट इज कंपोस्ट। हाँ, तो वो फर्टाइल होता है, उसको फिर हम खाद के रूप में अपने फलों में, सब्जियों में, कहीं भी डाल सकते हैं। तो किसने किया ये सारा काम? ये किया बैक्टीरिया एंड हाँ, फंगी। बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स ने। डिकम्पोजिशन कंपोस्ट कर दिया। यस। सेकेंडली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी क्या है कि नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, अबाउट 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको हम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन एटम के बीच में। बट देर आर सम बैक्टीरिया विच आर एबल टू ब्रेक दैट बॉन्ड, और नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। So that is why bacteria help us in this way by fixing the atmospheric nitrogen. Thirdly, microorganisms are सर very useful वो for making बैक्टीरिया curd. सर जैसे हम बनाते हैं, हाँ, ओके, कर्ड बनाते हैं घर में हम फ्रॉम मिल्क। So that is made by the bacteria called lactobacillus. Okay, then there are different bacteria for making cheese, pickles, ब्रेड के लिए yeast है, केक में भी yeast यूज होती है, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, all these different things are made with the help of microorganisms. Let us take some more examples. फिर आपने देखा होगा there are antibiotics. Antibiotics क्या होती हैं? They are सर the chemicals. हाँ, बोलिए बेटा। Yes. सर वो मेडिसिन जो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर को डिजीज पहुंचाती है सर, उससे बचाने वाले जो मेडिसिन होती हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। So antibiotics are a group of medicines which we obtain from microorganisms, but they also kill microorganisms. ठीक है? One microorganisms produce some antibodies which kill another microorganisms. तो हम उनको यूज करते हैं। So बहुत सारी एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। So इसीलिए उनको मैंने बोला इट इज ए होल ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं, बट वी ऑब्टेन देम फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। बट वो हमारे डिजीज को भी मिटाने में हेल्प करती हैं। ओके, देन मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाते हैं हम लोग, तो उसमें यीस्ट, द फंगस कॉल्ड यीस्ट रिप्रोड्यूस इन फ्लोर डॉग एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि जब इडली का आटा या केक का जो उसको हम रख देते हैं ओवरनाइट, एक रात के लिए,
फिर अगले दिन फूल जाता है, उसमें यीस्ट पाउडर डाला जाता है। ओके, तो यीस्ट पाउडर होने की वजह से उसमें इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण कि वो फूल जाता है, तो उसको सॉफ्ट बना देता है। तो वी कैन मेक इडली इन दिस वे, ब्रेड, केक, इन सब में यीस्ट पाउडर का यूज होता है। देन अल्कोहल, अल्कोहल बनती है, अल्कोहल भी यीस्ट की मदद से बनती है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी है, हम करेंगे वो एक्टिविटी, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फर्मेंटेशन। सर इसमें सो सर व्हाट ईस्ट और हैपेंस, शुगर। हाँ यीस्ट और शुगर, तो हाँ वेरी गुड, ठीक है आपको पता है। तो यीस्ट प्लस शुगर डालते हैं पानी में, थोड़ा सा इसे गर्म करते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं। तो थोड़ी देर में यीस्ट by using all the sugar convert that mixture into alcohol. Okay, and this process is called fermentation. Okay, so let us now move on to the next topic, that is making medicines. So medicines कैसे बन रही हैं? As I told you, there are antibiotics which we obtain from microorganisms, and these are, ये नाम है एंटीबायोटिक्स के, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। ओके, अब क्या है कि आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है, हर आदमी बोल रहा है कि मुझे वैक्सीनेशन करवानी है, कोविड की हमें इंजेक्शन लगवाना है ना, दैट इज वैक्सीनेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दे आर जस्ट द मेडिसिन। बट वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन में असल में आपकी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसको पहचान ले, और अगली बार जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आप पे अटैक करे, आपकी बॉडी पे अटैक करे, तो आपकी बॉडी पहले से ही तैयार हो से लड़ने के लिए। दैट इज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में हल्का सा, जैसे सपोज कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन लग रही है, तो उसमें हल्का सा कोरोना वायरस ही होता है, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है भाई? तो ताकि हमारी बॉडी को पता चल जाए कि ऐसा है कोरोना वायरस, और आप तैयार रहिए इससे लड़ने के लिए। तो अगली बार जब कोरोना वायरस के एंटीजन्स आएंगे बॉडी में, तो हमारी बॉडी विल फाइट विद इट एंड विल किल इट। और बहुत सारी डिजीज के लिए वैक्सीनेशन होती है, सर फॉर एग्जाम्पल पोलियो ड्रॉप्स। तो पोलियो ड्रॉप में क्या होता है? असल में पोलियो कॉज करने वाले वायरस ही होते हैं, बट बहुत वीक होते हैं वो, और बहुत कम मात्रा में होते हैं। फिर कॉलरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ओके, आप सबको ये इंजेक्शन लग चुके हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। Let us move further. Now there are harmful microorganisms, and these are called as pathogens. Simply speaking, pathogens are disease-causing microorganisms. Some microorganisms grow in food substances and produce toxic substances and make the food poisonous. Okay, अब जैसे suppose we have food and we kept it overnight. अब रख दिया हमने वो खाना, फ्रिज भी नहीं है हमारे पास सपोज, तो हम देखेंगे कि विद इन 1 or 2 days दैट फूड विल बी स्पॉइल्ड। अब किसने किया स्पॉइल उसको? आप देखेंगे आपको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन वो हो जाता है स्पॉइल, बिकॉज इन द एयर देर आर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट ऑन आवर फूड। फिर उसमें रिएक्शन होती है, और वो सारा का सारा हमारे खाने के काबिल नहीं रहता, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ओके, सो अगर हम फिर भी खा लेते हैं तो फिर क्या होगा? सर फूड व्हाट विल पॉइजनिंग हैपन हो देन? जाए। फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। हाँ, हमारे पेट में दर्द हो जाएगी, हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है हमें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़े। राइट, सो फिर देर आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक फंगस है ना, जो फंगस तो हर जगह हो जाती है। जैसे लेदर के कपड़े हैं, वूल के कपड़े हैं, कोई भी चीज घर में ऐसे ही पड़ी हुई है,
और क्लोथ्स हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप साफ नहीं करते उनको और उनकी केयर नहीं करते हैं, धीरे धीरे फंगस विल ग्रो। इवन कि अगर हम भी नहीं नहाते हैं रोज, तो हमारी स्किन पे भी फंगस ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो देन इट विल कॉज इचिंग, और फिर धीरे धीरे हम बीमार होंगे। सो दीज ऑल आर द harmful microorganisms. So we will read more about it tomorrow. So today let us keep it here only, up to this only. Let me show you in the textbook now. What you have to do in your notebook. So this is our chapter. कल वाला काम हो गया था सब बच्चों का? तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, साथ साथ, पेंडिंग नहीं करना है। पेंडिंग अगर काम हो जाएगा तो देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, बिकॉज देन यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक, सर बस तो थोड़ा उसमें सा टाइम लगता रहता है। है। हाँ, वो धीरे धीरे आप करते रहो, कोई बात नहीं। तो ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं और फिर वो पीछे पीछे चला जाता है काम, तो दिखता, ढूंढने से भी नहीं मिलता है, इसलिए साथ साथ करना जरूरी है। ओके, सो ओके, कोई बात नहीं। सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिटन वर्क टुडे। अभी मैं आज कोई काम नहीं दे रहा हूँ आपको, चैप्टर आपने समझ लिया, एंड वी विल डू सम रिटन वर्क टुमारो। ओके, ओके सर। हाँ।